अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप मीडिया पर्सनल हैं, आप सिक्योरिटी पर्सनल हैं, इफ यू आर कमिंग स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस इन दीज टाइम्स, देन यू शुड स्टे सेफ, अवॉइड डिस्टेंस फ्रॉम योर किड्स ऑल्सो इफ पॉसिबल। एंड जैसे ही आप घर में वापस घुसते हैं, आप इमीडिएटली अपने कपड़े बदलिए, उनको धोएं, उनको धूप में सुखाएं, नहा लीजिए अगर पॉसिबल है। I would like to send a message to the public. Please don't be panicky. And the government of India has finalized some guidelines for the testing. Don't go testing without any prescription of the doctor, without going to the doctor. If doctor says that it is required, only then go. Today we will be meeting and interacting with those who form the technology and communication backbone of the Government of India in the fight against COVID-19. If this app is downloaded by each one of us who carries a smartphone, alert that might reach you even before you realize that you have a possibility of getting infected. We are ensuring that the link to download this platform is sent to each and every phone in our country. Beauty of this app, as you can have seen, is it's very simple. It's easy to use. I got onboarded within 30 seconds. All the information is available for you, and all the information available to you in a personalized, curated manner. हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन।
Hello and welcome to COVID-19 Doctor Speak, a call-in show where you can call us and ask all your questions to a panel of esteemed and renowned medical professionals on all the health-related aspects of COVID-19. Our panelists will answer all your queries and questions and concerns, in fact, and clear any doubts that you may have. I am Nancy Kohli and with me is Rajni. Good afternoon, Rajni. शुक्रिया नैन्सी। डॉक्टर स्पीक जहां विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। हमारी टेलीफोन लाइंस आपसे 1 घंटे के लिए आपके लिए उपलब्ध हैं। हमारे नंबर हैं 0112338731 और दूसरा नंबर है 0112309765। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर डॉक्टर से कोविड-19 से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तारुफ कराते हैं अपने विशेषज्ञों का। Absolutely, yes. We have Dr. Rohit Sareen. He's the former director, National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases. Thank you very much, sir, for joining us here on Doordarshan News. And we also have Professor Ashutosh Biswas. He's the professor, Department of Medicine at the AIIMS. Thank you very much, Doctor. Thank you very much, Professor, for being here and joining us here on Doordarshan News. And we'll also be joined on the Skype from Indore, Dr. Sunil Jain, endocrinologist, will be joining us shortly. So let's get started, and please make sure that you call us during this 1 hour and ask any concerns and questions that you may have from our doctors. But more importantly, Rajni, let's tell our viewers, as far as the self-isolation guidelines are concerned, what they're all about. In fact, people who are clinically diagnosed to be having very mild symptoms of COVID-19 or are in the pre-symptomatic phase now also have an option for home isolation. So according to the fresh guidelines issued by the Health Ministry, those who show COVID-19 symptoms but are not severely affected by it now have the option for home isolation. The ministry has further said that the new guidelines are in addition to the existing ones. So we'll tell you more about that. And well, that is that as per the eligibility for the home isolation, the person should be clinically assigned as a very mild case or pre-symptomatic case by the treating medical officer. The patient must also have requisite facility for self-isolation at their residence. Also, a caregiver must be available 24/7. The Arogya Setu app must be downloaded and must remain active via Bluetooth and Wi-Fi. Meanwhile, the patients must fill undertaking before self-isolation as provided by the government, and the government has also advised patients to seek medical attention if the serious symptoms do develop. So a patient is to end the self-isolation only when the health officer clinically certifies them free from infection. And in fact, the Health Ministry has also listed the symptoms that determine if a patient does need immediate medical attention. Moreover, they are to end the home isolation only if and when clinically advised by the treating medical officer. And for your benefit, more details are also available on the Health Ministry's website. That's www.moh, that's the Ministry of Health and Family Welfare, mohfw.gov.in. तो जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, केसेस सामने आ रहे हैं, उसके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो बहुत ज़रूरी है, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे कि होम आइसोलेशन का क्या मतलब है और डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो कर रहे हैं, डॉक्टर जो निर्धारित कर रहे हैं, डॉक्टर जो निर्देश दे रहे हैं, उनको फॉलो करना, उन्हें मानना क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे इस नई गाइडलाइन के मायने, कैसे आप घर पे रहकर होम आइसोलेशन को समझें। डॉक्टर रोहित, अगर हम बात करें जिस तरीके से आज जो गाइडलाइन जारी की गई है होम आइसोलेशन को लेकर, अगर डॉक्टर ने आपको निर्देश दिया है, सबसे पहले उसे समझना जरूरी है कि इस होम आइसोलेशन के क्या फायदे होंगे, दूसरी बात इसे कैसे समझा जाए, ये किन लोगों के लिए है? देखिए, ये है कि आइसोलेशन तो आप समझते हैं कि आप एक अलग से स्थान में हैं जहां पे आपका कांटेक्ट और लिंक किसी से नहीं हो रहा है। अब पहले जब ये कोविड आया तो जितने भी केसेस समझे जाते थे कि कोविड के हैं, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे इनिशियली थोड़ा से ही उनको लक्षण हो बीमारी के, तो उनको हॉस्पिटल में ही भर्ती करते थे। इस करके कोविड हॉस्पिटल्स भी आने शुरू हो गए और जो कई जनरल हॉस्पिटल्स थे वो कोविड हॉस्पिटल्स बना दिए गए, क्योंकि अनुमान ये था कि ये कोविड के केसेस बहुत बढ़ेंगे। परंतु जैसे जैसे बाकी इंटरवेंशंस हुई भारत सरकार की तरफ से, जो बाकी उन्होंने जो भी इंटरवेंशंस की, जिनमें प्रमुख जो है वो लॉकडाउन है,
तो देखने में आया कि आंकड़े उतने ज़्यादा नहीं हैं, परंतु फिर भी हैं। और हर स्टेट का एक अपना एक ट्रेन चलती है, जहाँ पे कई ट्रेन फास्ट चल रही हैं, कई स्लो चल रही हैं। इस ढंग से आंकड़े बदलते जाते हैं। आज की डेट में ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो थोड़ा कठिन हो गया है, क्यों करके हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर बहुत मरीज अब आने शुरू हो गए। अब हमारी जो मरीजों की तादाद है ये सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है। तो जब ऐसा हो जाता है तो गाइडलाइन में जो आइसोलेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये देखा गया है कि क्योंकि जितने ये माइल्ड केसेस हैं वो अधिकतर बिना किसी इंटरवेंशन के ठीक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई So doctor, just to understand the strata here, what sort of cases are you receiving the maximum? Are these the most of the patients that are coming to you, they are mostly with mild symptoms or with the severe symptoms? Because if they are mild, with the new guidelines now coming in, they don't need to get hospitalized. They can take care of themselves, self-isolate themselves at home only. So what sort of cases are you really getting at this point? We are nearing this lockdown as well. Where do we stand right now and the way forward from here? Well, you see, the issue here is that the type of people whom we get sometimes are so mild that one doesn't even suspect that it could be COVID. It is only when you go into more details in the history that you realize that, okay, this particular individual could be coming from a hotspot area, or this particular individual could have had a contact with some person who is a diagnosed COVID case. Maybe not in the recent past, but maybe somewhere down the line, a few days earlier, this could have happened. And most of them present with just some mild cough and fever. This is the typical type of case that we get, and therefore you will find that in most of the places, they have these cuff meter, these meters to mark the temperature. Right. And when they look at even a slightest rise in temperature, they say go into more of details of history and all that, and try to work out whether such a... Now, in these cases were earlier hospitalized, as I've said, but today they can be managed at home. In home isolation, they need to have a separate room. They need to have a separate person to take care of them. There should be only one person who should be taking care of them, and that person should not be belonging to a high-risk group. That means should not be elderly. And that person also should be taking utmost precaution, because obviously, because whenever he's doing the work of a healthcare worker. Yes. So when we talk of, wearing masks and all that in front of a COVID positive patient, then obviously this individual is required to wear all these protective things, so that the individual doesn't get the transmitted infection. And as you rightly pointed out earlier, that when to get relieved from this home isolation, the decision is also that of a doctor. Usually it's about 2 weeks time of isolation, but it could even be longer. It all depends, about what was the symptoms and what is the positivity. डॉक्टर रोहित, क्रमवार हम इन सब चीज़ों पर आएंगे कि होम आइसोलेशन कब खत्म होगा और उसकी क्या कब उसको खत्म करना है, कब हम ये समझें इन चीज़ों को। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे एक और विशेषज्ञ जुड़ गए हैं इंदौर से। डॉक्टर सुनील एम जैन है हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्काइप से जुड़े हैं, और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इंदौर, जो कि हॉटस्पॉट में शामिल है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस सामने आए हैं और रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन गंभीर मामले काफ़ी देखने में आए हैं। डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहेंगे, आज होम आइसोलेशन को लेकर जो नई गाइडलाइंस हैं उससे क्या फ़ायदा होगा? क्या मरीजों की जो तादाद हॉस्पिटल्स तक आ रही थी उनमें कुछ उस पर कुछ ज़रूर कमी आएगी? देखिए, हम लोग पिछले 1 महीने में जो कोविड-19 है इसके ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया में, और शुरुआत में सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं लोगों को वेंटिलेटर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बहुत सिग्निफिकेंट डिसीज तो नहीं होगी। अब हम लोग देख ही रहे हैं, डेटा ICMR के भी डेटा आ रहे हैं, मुंबई से भी डेटा आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भारत में एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, मतलब जिनमें लक्षण कम है, उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसा कि आप इंदौर में देख रहे हैं, इंदौर में भी मरीजों की संख्या काफ़ी थी, क्योंकि अब ये है ही कंटेजियस डिसीज़। अब ये अगर एक कम्युनिटी में है, एक पॉपुलेशन में है और एक परिवार में है, तो ये तेजी से फैल सकती है। अब
पहले हमें डर ये था कि कहीं अधिकांश मरीजों की तबीयत बहुत नहीं बिगड़ जाए, लेकिन अब इंडिया में ट्रेंड में चेंज देखा जा रहा है। अब कारण जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ पर गंभीर लक्षण वाले मरीजों की संख्या कम है, और यदि उनकी संख्या कम है तो बिना वजह उन्हें हॉस्पिटल विजिट कराकर और लोगों में संक्रमण फैलाने का कोई लॉजिक नहीं है। राइट, क्योंकि डिसीज का कोई बड़ा ट्रीटमेंट भी नहीं है, सिर्फ उन्हें अपने आप ही ठीक होना है, पैरासीटामोल लेना है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और आइसोलेशन में यदि रहेंगे तो ये हम जानते हैं कि ये वायरस 14-15 दिन में हमारे शरीर में से घूम फिर के इम्यून सिस्टम इसको निकाल देता है। तो 15 दिन के बाद अब ये व्यक्ति पूरी तरह से ठीक है, तो बेटर होगा कि हर मरीज को हॉस्पिटलाइज करने की बजाय उन्हें आइसोलेट किया जाए। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को जिसे आइसोलेट किया जा रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पूरी ईमानदारी से इस आइसोलेशन का पालन करें। ओके, ऑलराइट। नैन्सी, ये बात बहुत जरूरी कही है कि नैतिक जिम्मेदारी उस आदमी की भी बनती है जिसे प्रिस्क्राइब किया गया है होम आइसोलेशन के लिए। और नैन्सी, इस बीच कॉलर जुड़ गए हैं। We have our caller at this time. Mr. Arun is joining us from Delhi. Yes, good afternoon, Mr. Arun. Please go ahead and ask your question. हाँ मैम, एक क्वेश्चन है मेरा, आशुतोष जी से एक क्वेश्चन है सर मैडम। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे जो हम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और पार्लियामेंट से बोल रहा हूँ मैडम। मेरी एक बात ये थी कि जो हम मान लो हम कोविड के संक्रमण हो गए और हमें पता नहीं चला इस चीज का जी, और पता नहीं चला, और हम तो फिर क्या 14 दिन के अंदर वो हमारे क्या वो अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर नहीं होगा? So he's talking about the asymptomatic nature of the treatment. Professor Biswas, I'll take that from you, because you know that's a concern that many people across the country have. What if I have the infection, I'm carrying the virus, I may not get to know about it anytime soon, so what should I do? Should I quarantine myself? Well, that's something that's mandatory, we all must do. Please answer that, Professor Biswas. Yeah, this is now, it's a great challenge for us really, एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि ये nowadays the coronavirus, the silent corona, जो COVID-19 silent, there are 3 types. One is that pre-symptomatic, one is asymptomatic, another mild symptomatic. So 3 types of these viruses, the coronavirus, are silent. You may not know. So why this is happening? And 80%, it has been seen in different states. In India, we have learned now over time, last 1 month, we have seen all these cases across in our country. About 80% of the cases are silent corona. We don't understand that they are having positive कोरोना में संक्रमित है मगर कोई भी लक्षण नहीं है। तो अभी 80% जो लोग हैं ये घूम रहे हैं, हमारे आसपास ही है, they are moving around everywhere, they don't have any symptoms. So how to capture them? Now if we go for testing, 80% of the people are not symptomatic. In our cases, in many hospital in across, so many medical colleges और जो भी कोविड हॉस्पिटल है, 80% लोग पॉजिटिव हैं, unnecessary they are kept for 14 days जो incubation period, and we are waiting for to see the severity, to see the development of the disease. And it has been seen कि 14 दिन में इन लोगों को कोई भी symptoms नहीं है, just mild, एक दिन बुखार हो गया कि खांसी, mild कफ है तो नेक्स्ट डे ठीक हो गया, जो पता ही नहीं चलता। अब अगर पॉजिटिव हो गया तो हम हॉस्पिटल में क्यों रखें? तो अभी इसीलिए जो नई गाइडलाइन है, जो आइसोलेशन है, कि जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है मगर पॉजिटिव है, सो दे कैन स्टे एट होम, दे कैन स्टे विद द प्रॉपर फॉलोइंग द गाइडलाइन। सो अननेसेसरी हम हॉस्पिटल में उनको 14 दिन हॉस्पिटल में रखने का कोई देखा गया कि कोई फैसिलिटी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है स्पेसिफिक, हम वी आर नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट फॉर दिस। वैक्सीन तो अभी पता नहीं कब होगा, another 6 months, 1 year. You know, for better understanding, since the data suggests that 80% people of this country are asymptomatic, Yes. What would you say about that? Is that to do something with good immunity that people are exhibiting? Is that a news of some relief, you know, that's coming, or is that a bad news? Yes, इसमें जानना होगा
कि जैसे हम जब सांस लेते हैं तो कोरोना वायरस पहले तो हमारे गले का जो कोशिकाओं है उसमें अटैक करता है, हमला करता है, फिर धीरे धीरे वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, संख्या बढ़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे ये लंग्स के अंदर जो फेफड़े में जाता है। सो पहले तो ये लोकलाइज जो कॉलोनाइजर हम बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन होता है 3-4 दिन में एक लोकल, जैसे हम जब टेस्ट करते हैं लोगों को नहीं पता होगा कि हम कहाँ से सैंपल लेते, हम गले और नाक से सैंपल लेके वायरस को टेस्ट करते, ब्लड से नहीं करते। ब्लड का जो अभी वी टेक द स्वाब बिकॉज ऑफ it has been seen the virus is multiplying inside the throat. So now for few days it is there. And which person, the number of the people which these people is which are those people are going to develop symptoms or severity which are not, which we have seen the positive है गले में वायरस संक्रमित है बट कोई लक्षण नहीं है बिकॉज ऑफ दो चीजें, एक तो इम्यूनिटी, दो जो एक जनरल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी हम बोलते हैं, जैसे हमारे डिफेंसिव पावर बहुत ही स्ट्रांग है, और एक हम बोलते हैं जिसको म्यूकोजल इम्यूनिटी, बिकॉज नाक और जो म्यूकस थ्रोट में जो इम्यूनिटी म्यूकस मेम्ब्रेन में हम एक इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी वायरस को बढ़ने नहीं दे रहा है और फैलने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो वायरस थ्रोट से क्या होगा धीरे धीरे लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर इन्फेक्शन बढ़ेगा और सांस में दिक्कत खांसी ये होती है, फिर एक होता है कि ब्लड में जाता है वहां से। सो अगर लंग्स में चला गया, लंग्स में जाने के बाद जहां पे निमोनिया, ब्रेथलेसनेस और ARDS, उस टाइम सिवियरिटी में गंभीरता होता है, किडनी भी असर करता है। यस, सो अगर क्या होता है कि उस स्टेज पर अगर म्यूकोजल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो दिस विल नॉट अलाउ टू स्प्रेड द वायरस इनटू द trickling down to the lungs or in the blood. So that is the key point. Now we need to understand also at this point. We'll come back and understand this, Professor Biswas. I think Rajni also has a question for you, but first let's take a caller at this time. Miss Riha Pathak is joining us from Bengaluru. Good afternoon, Miss Pathak. Please go ahead and ask your question. हाय मैम, एक्चुअली आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मेरे पेरेंट्स दोनों 60 प्लस है और दोनों डायबिटिक है, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा है कि पता है बीच बीच में मेडिसिन के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कांटेक्ट से हो सकता है या ऐसे आप मतलब दूर दूर रहेंगे तो भी फैल सकता है ये। डॉक्टर रोहित, in fact, let's take that from Dr. Jain. He's endocrinologist as well. Dr. Jain, please ask that question. She's talking about her parents. They are both diabetic. So what should they do? Should they continue taking the medicine? Of course, they must. And what norms, people with underlying medical conditions like diabetes or hypertension or, any other problem that they may have, how they need to be all the more alert in these critical times? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि दोनों पेरेंट्स को डायबिटिक है और उनकी एज 60 के ऊपर है, तो डायबिटीज प्लस एल्डरली एज ये हो जाते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन। अब इन्हें उनके लिए मेडिसिन भी पहुंचानी है, उनका ट्रीटमेंट भी करना है, तो इस समय में सबसे बेहतर सलाह ये होगी कि ये एल्डरली पेरेंट्स घर में ही रहें, ये बाहरी जनता के संपर्क में न आए। यदि किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में ये आते हैं तो इन्हें प्रिकॉशंस लेने होंगे। सरल शब्दों में हम ये समझ लीजिए कि इस वक्त चूंकि हम देख रहे हैं कि बिना लक्षण के मरीजों की संख्या बहुत सारी है इस देश में, तो ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति जो हमारे आसपास है, जो परिवार का सदस्य नहीं है, उसे कोरोना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेहतर है कि कोई और व्यक्ति इन पेरेंट्स के लिए मेडिकेशन की व्यवस्था करे और ये कॉमनली लोगों के संपर्क में ना आए, और यदि मजबूरीवश आना होता है तो मास्क जरूर पहने, और बाहरी किसी भी चीज से इनका स्पर्श होता है तो हैंड वॉश जरूर करें। अगर ये प्रिकॉशंस रखेंगे तो एज सच इन्हें कोई डायरेक्ट रिस्क नहीं होगा। ओके, श्योर। तो साफ तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं आइसोलेशन की, उनको समझना और उनको मानना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर जैन, आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है जो आज की गाइडलाइन है नैन्सी, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि होम आइसोलेशन जब डॉक्टर आपको निर्देश करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़रूरी है कि होम आइसोलेशन के लिए आपके घर में वो सुविधाएं मौजूद हो। अब ये जानना ज़रूरी है कि वो सुविधाएं क्या है। डॉक्टर रोहित, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि यदि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन प्रिस्क्राइब किया है तो क्या जरूरी सुविधाएं जो उस वक्त उसके घर में मौजूद होनी चाहिए? देखिए, सुविधा में ये है कि सबसे पहले तो
दी अकोमोडेशन जो है उसके पास होनी चाहिए। अब जैसे हम कई देखते हैं कि डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत हैं, तो ये एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस डूइंग आइसोलेशन may not be the at least at home may be a bit difficult, परंतु अगर पॉसिबल हो तो उसमें यह है कि ऐसे व्यक्ति को आप एक अलग से कमरे में रखें, वेंटिलेशन वहां पे अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी अ वेल वेंटिलेटेड रूम। जो भी उनकी देखभाल करे वो एक आइडेंटिफाइड पर्सन होना चाहिए जो हाई रिस्क वाला ना हो। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे ये एल्डरली है, डायबिटिक है या बाकी ये हाई रिस्क वाले हैं, तो ऐसे लोग तीमारदारी मत करें उस पेशेंट की। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखने वाली हैं, और अगर पॉसिबल हो तो उस पेशेंट का जो वॉशरूम है वो वॉशरूम भी अलग से होना चाहिए। ये नहीं कि भी और उसके बर्तन खाने पान के ये भी सब अलग से होने चाहिए। We're getting more calls at this time, but before we get to that calls, we get to those calls, we are also getting questions on our Facebook page, and Professor Biswas, I would like you to answer those. One of the persons is asking, till what time can an asymptomatic patient spread COVID-19 virus? Yeah, asymptomatic जैसे अभी बताया कि these are all sometimes they are harboring the virus in the throat. Now when we sneeze, we cough, this through the droplet the viruses are coming and mixing in the air, and possibly these droplets cannot fly more than 1 to 2 meters more. The aerosol there. Aerosols, but it is sometimes it is not that when there is a wind blowing, then that droplet can fly more than that stipulated time, and then if anybody comes in contact, probably that. So it is usually that 14 days, within that 14 days we have seen most of the positive cases, corona asymptomatic positive, they clear off their virus from the throat. That is, your immune system kills them gradually. But in few cases we have seen that it may extend more than 14 days also as a colonizer, because it is not spreading in the blood, it is not spreading in the lungs to cause your symptoms, severe symptoms or maybe moderate symptoms. So we have seen that 80% are this kind of mild or asymptomatic, 20% are symptomatic. Out of that 20%, only 3 to 5% patient may require really hospitalization or very critical care management. This is what 1 to 2% patient may require ventilator. So it is very less number of the patient really, if we talk about the management of the cases, that only 5 to 15% patient may require hospitalization. The rest of the all patient, those who are positive, can be kept isolation at home if it is everything in suitable situation. No need to be kept in the hospital. So within 14 days usually that symptoms develop and they can they are safe usually. But before declaring safe, we need to test them again. If we have tested first, and then we see whether the patient is cleared from the virus from the throat or not. That is the only. आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसमें सिर्फ ये इतना ही कहना चाहूंगा कि होम आइसोलेशन तो हमने कर ली, परंतु उसके साथ साथ मरीज की मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भी हमने मरीज को कहा कि आप घर जाके आराम कीजिए और मरीज को आस्ता आस्ता खांसी भी बढ़ने लगी और सांस फूलने लगा और वो एक ऐसी स्थिति में अस्पताल में आए जहां पे उसको फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। एंड स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप होता है उसमें तो ये बहुत शीघ्र हो जाता है कि आज सिम्टम हुआ और 2 दिन में ही उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ा जाती है। तो इस करके ये आवश्यक है कि जितने भी होम आइसोलेशन के हैं, जिनको भी हम एडवाइस करते हैं, उनका हम रिस्क स्टेटस भी नोट करें कि भाई वेदर दे आर हाई रिस्क और वेदर दे आर यंग एडल्ट्स, तो और उस हिसाब से ही उनकी मॉनिटरिंग भी हम करें। एंड पेशेंट को भी बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपको ये लक्षण होते हैं तो आप तुरंत अस्पताल आ जाइए, इंतजार मत कीजिएगा किसी चीज। Yes, we have a next caller at this time. Tukmeet is joining us from Aligarh. Yes, please go ahead and ask your question. डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाजार से वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स लाते हैं तो उसके बारे में कुछ हमें पता नहीं लग रहा है। कोई कहते हैं पानी में डुबो दिया जाए, कोई खारा सोडा डाल दिया जाए, या कितने समय तक उसको डिप रखा जाए और कब हम फ्रिज में उसको रख सकते हैं, जरा प्लीज जरा क्लियर करेंगे सर ये थिंग। थैंक यू सर। Okay.
Yes, Professor Biswas, if you could answer that. He's talking about, asking about how should we use the fruits and vegetables that we buy from the market. Yeah, we have seen that probably these are all fomites, might be, if anybody is infected, the virus or the droplets can fall on these vegetables. That is the question. And then bringing them to the to home, and then touching and spreading and then inhaling the virus going into our, this is the mode of. So what usually these fruits and vegetables, first of all, that you must wash properly. That is one, that by washing you can wash out the viruses, that all the things that there. And then keep it this for maybe few hours outside your home, and or sometimes you can wash them with the salt water और vinegar से भी आप wash कर सकते हैं. तो और बाहर अगर धूप में रख दें फिर भी 2 घंटा 1 घंटा में वायरस उसमें डीएक्टिवेट हो जाता है. सो नथिंग टू पैनिक अबाउट. ओके, बहुत ज़रूरी जानकारी है यहाँ पर कि जो भी सब्जी दूध आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, ज़रूरी है कि नमक के पानी में उसे अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें. डॉक्टर रोहित आपके पास दोबारा लौट रहे हैं, उसके बाद इंदौर चलेंगे डॉक्टर जैन के पास. डॉक्टर रोहित, आपसे सवाल, आप हाई रिस्क की बात कर रहे थे. बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है जानना उस हाई रिस्क को कैसे समझे, कौन लोग हैं उस हाई रिस्क में. देखिए, एक तो ये है जो बुजुर्ग हैं. अब हम सोचते हैं कि 60 साल की उम्र से ऊपर जो है अभी की वो देखने में जवान लगें, परंतु इस उम्र का तकाजा ज़रूर इंसान को करना चाहिए कि अब 60 साल की उम्र हो गई. एक तो उम्र हो गई. दूसरा, अगर उसको और अन्य कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि एक डायबिटीज़ हमने बोला, हाइपरटेंशन दूसरी है, और कोई कार्डियक अबनॉर्मैलिटीज़ हैं, सीओपीडी है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, मतलब फेफड़े की कोई भी अन्य और बीमारी है, या किसी और वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको लंग कैंसर है, उसको किसी भी शरीर का किसी भी अंग का कैंसर है उसको, तो वो हो सकता है ऐसी दवाइयां भी ले रहा हो जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो रही हो. तो इतने जो ये सब जिस तरह के जिस प्रकार के हमने लोग बताए हैं वो सारे हाई रिस्क पे रहते हैं. कुछ मरीज हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए हैं, वो भी हाई रिस्क पे रहते हैं. तो I think we have to understand this, that this is a special group and they cannot follow the usual guideline that we give for COVID. This is a special group. और इसमें ये भी देखने में आया है कि जो हमारी mortality risk है वो बहुत हाई है और बहुत जल्दी मरते हैं ये लोग. ये नहीं कि भी ये हमें समय दे देते हैं, नहीं, their dip is very fast. आज अगर उनको बीमारी हुई and if we are not careful, within a very short time, 2-3 days, they will pass away. In spite of all efforts, they will require ventilator. They may come in a mild situation, but it sometimes becomes difficult to save them. So this high risk is very, very important. It's good that you asked that, ma'am, but I'm re-emphasizing this, that these group of people need to take special care. बहुत ज़रूरी है नैन्सी समझना कि हाई रिस्क में कौन लोग हैं और कैसे उनको ज़रूरत है इस वक्त पर सही निर्देश फॉलो करने की. नैन्सी, कॉलर इस बीच. Yes, we have our next caller. Mr. Rajiv is joining us from Jaunpur. Yes, Mr. Rajiv, good afternoon. Please ask your question. Good afternoon, ma'am. अपना सवाल पूछिए. हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी जागरूक नहीं है कोरोना को लेके. उनमें कोई मतलब जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग मानने को तैयार नहीं है. तो सरकार इसके लिए कुछ काम नहीं कर रही गाँव में. सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराइए प्लीज. गाँव क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है मैम, इस क्षेत्र में लोग मानने को तैयार नहीं, कोरोना भी है कुछ करके. लोग अपना काम कर रहे हैं, वो बचाव नहीं कर रहे हैं, उतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं. जी, जागरूकता की कमी है लोग. There's a lack of awareness he's talking about, Professor Biswas. It's hard to believe that in this difficult times, people are not adhering to the government rules and not really following them by letter and spirit. What would you like to advise I such think people? This is whole world, this is a world war and every country is affected and we are really in lockdown and we are losing so much economic loss and life, human life loss. So if the ग्रामीण में जो रह रहे हैं और उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये कोरोना है और इसमें लोग, जैसे हमें इंडिया में 50 से 60 लोगों की मृत्यु होती है एंड कम से कम 1500-1600 लोग
24 घंटे में संक्रमित हो रहे हैं, तो ग्रामीण लोगों में ये जागरूकता होना चाहिए। और ये कैसे इनको शायद अवेयरनेस कम है, तो अवेयरनेस के लिए ध्यान देना चाहिए कि ये सीरियस बीमारी है, ऐसे लाइटली ना लें। और जैसे लॉकडाउन में आप जैसे बोल रहे हैं कि आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब सीरियस मामला है, क्योंकि हम इतना लगे हुए हैं, पूरे देश में हम लॉकडाउन पालन कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा गया है कि हाँ, इट इज ए अर्बन डिजीज, क्योंकि रूरल में इतना है नहीं, और अर्बन में क्योंकि द पीपल आर मूविंग हियर एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और गांव में शायद ये थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होंगे, और देयर आर मेनी इश्यूज कि नॉट प्रोबब्ली पीपल आर मूविंग फास्टर फ्रॉम दैट। Elaborate on that a bit, and I would like to bring you in, Dr. Sureen, at this point, because we're talking about the future here, and we have such people here who are less aware or who are not aware, and they're not following the guidelines or adhering to the norms that all of us must be following, wearing our masks whenever we go outside, follow social distancing, follow a proper hygiene, because would you say that's the future? That's something that we may have to follow for some more time. That is the future, developing immunity and following all these norms, and that's where the responsibility of us as a citizen comes into play, and that's going to be very important. Well, you see, here I would like to bring out an issue. It's not the future. It's learning from the past. I distinctly remember that during childhood, our parents used to tell us, please wash your hands. It's a very simple thing. Whenever we used to come from outside, we used to take off our shoes. If we have to go to the kitchen and all that, we used to wash the feet, and so that means basic hygiene was something which was given so much importance. We were told cough etiquette. Whenever you are coughing, you should put your hanky and all that. So things were already existing, but we lost them. We lost them somewhere down the line. We are now getting back into it. So what you are mentioning is, it is just practicing what we should be practicing as general. As someone has already remarked, that basically everyone around you could be a corona patient because they are asymptomatic. So there are universal precautions which we need to take, and this is part of that universal precaution. तो जरूरी है कि इस वक्त I'd like to just add a quick. They probably, when these people, those who are living in village, they're saying, see, they don't know whether corona really existing or not. So this is, they are getting, everywhere now, TV, media, everywhere. It's not that they cannot deny that there is no corona. Probably this is an attitude. They probably, we are in the village, probably it is nothing to do with us. So they need to change their attitude. They need to understand this is a serious impact. Likely today there is not, but tomorrow the whole village may be affected. So they need to change their attitude and behavior. जी, जी। तो इस वक्त इंदौर से डॉक्टर जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर, जो होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसमें कहा गया है कि जो मरीज की देखभाल कर रहा है, जो होम आइसोलेशन है, उनके लिए भी समझना ये जरूरी है कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो खुद के लिए क्या एहतियात बरतें। डॉक्टर जैन, आपसे यही सवाल है कि जो तीमारदार है, जो बीमार के साथ होम आइसोलेशन में घर में मौजूद है, उसे किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, हम यहाँ पर पहले ना इस होम आइसोलेशन का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें। होम आइसोलेशन का अर्थ है एक ऐसा मरीज जिसकी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है और उसे कोई लक्षण नहीं है। जैसे ही उसे लक्षण होते हैं या तकलीफ होती है, अब वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, जैसे कि पहले डॉक्टर रोहित ने बताया है, और उसे अस्पताल जाना होगा। तो हम अब उस मरीज की बात कर रहे हैं जिसे कोई लक्षण नहीं है और जिसे घर में रहना है। अब यदि इस व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं है तो इसकी जो घर ऐसा, कमरा ऐसा हो जहाँ इसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति चलती रहे। और देखिए, अगर बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है जब तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक जहाँ पर कि ठीक ठाक घर है, हर व्यक्ति के लिए कमरा है, वहाँ ये आसानी से हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है तो अपना कमरा फिक्स कर लें और उसी कमरे में रहें। उस कमरे से 15 दिन तक बाहर आने की कोशिश ना करें। परिवार के सदस्य खाना बनाकर बाहर प्लेट रख सकते हैं दरवाजे के, जहां से वो उठा लें, अपना खाना खाएं और वापस से रख दें।
इस तरीके से अगर होम आइसोलेशन फॉलो होता है तो ये व्यक्ति 15 दिन में क्लियर हो गया, इन्हें वैसे भी कोई लक्षण नहीं है, तो इनकी कोई अलग से सेवा तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये अदरवाइज तो इन्हें कोई तकलीफ है नहीं। तो कुल मिला के संक्षेप में मुद्दा ये है कि इस व्यक्ति को 15 दिन के लिए और लोगों से दूर रहना है। अब यदि होम आइसोलेशन में इस चीज का पालन नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, तो ये बेहद जरूरी है कि जो भी व्यक्ति अब इनके लिए कुछ भी कर रहा है, खाना पहुंचा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कम से कम बहुत प्रॉपर मास्क वगैरह सब लगाए, उसके बाद ही इनसे सीधे खुले मुंह कभी बात ना करें। और इतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि ये व्यक्ति जिसे होम आइसोलेशन में रखा गया है, ये भी बिना मास्क के किसी के संपर्क में ना आए। अगर दोनों व्यक्तियों ने मास्क पहन रखे हैं तो इस वायरस के ट्रांसमिशन की रेट बहुत कम हो जाती है। और उसके अलावा जिस चीज का इन्होंने उपयोग किया है, अगर उस चीज को अब परिवार का अन्य सदस्य टच करता है, वॉश करता है, कर सकते हैं, लेकिन उसके दौरान जरूरी है कि अपने हाथ को मुंह पर न लगाएं। इस कार्य को करने के बाद हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, अब आप फ्री हो गए। क्योंकि वायरस दो ही तरीकों से शरीर में पहुंच सकता है, या तो सांस के जरिए, सांस नाक आंख के जरिए जो ड्रॉपलेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या दूसरा है कि वायरस किसी सरफेस पे था। क्योंकि मुद्दा ये है कि ये वायरस सरफेस पे टपकने से ही खत्म नहीं हो जाता, कॉपर छोड़कर अन्य मेटल्स पे इसकी लाइफ करीब 78-72 घंटे तक हो सकती है। तो अब ये वायरस अगर कहीं पड़ा है तो ये अपने आप उड़ के तो नाक में नहीं आ जाएगा, लेकिन यदि इस व्यक्ति ने इस सरफेस को टच किया और टच करने के बाद अब इसका हाथ इनएडवर्टेंटली अपने चेहरे पे चला गया, अब ये कांटेक्ट बन गया, अब वायरस को मौका मिल गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसने का। तो इन दो बुनियादी चीजों का अगर ध्यान रखें कि हम श्वास से भी न जाने दें और टच से भी न जाने। All right, Dr. Jain, we have a caller at this point. Mr. Nagendra Singh is joining us from Mandi. Yes, Mr. Singh, good afternoon. Please ask your question. मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैडम मेरा दो सवाल है। एक तो बहता पानी क्या कोरोना का कैरियर होता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सर्कुलेशन बेल है और डायरेक्ट सप्लाई जो है नलों में दी जाती है, कोई सेडिमेशन टैंक नहीं होता, कोई फिल्टर बेड नहीं होता। तो क्वेश्चन ये है सर डॉक्टर साहब की, ये जो हॉर्सशू जो ब्राउन बैट है वो हमारे सरकाघाट के ध्यानी गांव में बहुत ज्यादा तादाद में है, और फरवरी मार्च में ये और भी ज्यादा लाखों की तादाद में कहीं दूर पार से आ जाते हैं। हमारा चाइना बॉर्डर बिल्कुल साथ है, तो ये जो ब्राउन बैट है इसकी वजह से भय और दहशत बहुत ज्यादा लोगों में हो गई है। सर क्या इसका स्प्रे या सैनिटाइजेशन करना लाजमी नहीं है जैसे दूसरी स्टेटों में किया? यहाँ पर कुछ नहीं किया गया इसके बारे में, तो ये क्या ये कोरोना को फैला सकता है और ज्यादा कैरियर हो सकता है? धन्यवाद सर। नमस्कार। ओके, डॉक्टर सलीन, इफ यू कुड आंसर दैट। देखिए नेगी जी, ऐसा है कि आपके दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि भाई पानी जो बहता है उसमें क्या ये कोरोना वायरस रह सकता है और उससे क्या ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है, और दूसरा ये जो बैट्स की बात है, जो चमगादड़ जो आपने बताया कि आपके इलाके में ज़्यादा हैं, तो उनसे कैसे बचाव किया जाए, क्या वो कोरोना के कैरियर भी हो सकते हैं? तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि भाई जो कोरोना का वायरस है ये पानी में नहीं रहता। ये कोरोना जितने भी वायरस होते हैं ये अपने आप में नहीं रह सकते, ये शरीर के अंग के किसी ना किसी सेल में रहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए इनको किसी भी शरीर की आवश्यकता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो और चाहे वो एनिमल्स हो। कोरोना का विशेष ये है कि अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, तो किसी एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट से ही आपके ये वातावरण में आएगा, और अगर आप वही वातावरण में सांस लेंगे तो आपको हो सकता है। कहीं नदी में पानी बह रहा है, चश्मे में पानी बह रहा है, तो कोरोना वहां पे नहीं आ सकता है। एक तो ये चीज समझने वाली है। दूसरा ये है कि जो आपने बैट्स की बात कही है, तो ये एक रिसर्च का मुद्दा है। कई लोग ये क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कोरोना के वायरस हैं जो कि बैट्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, तो ये कोविड-19 जो है, ये सार्स कोविड जो 19 है, इसका अभी बैट्स के साथ स्पेसिफिक रिश्ता नहीं निकला है। इसका जो रिश्ता निकला है या तो मेरीन प्रोडक्ट्स के साथ निकला है कि भाई कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनके अंदर कहीं से मिला है। तो
बैट्स में इसका स्पेसिफिक अभी एसोसिएशन नहीं निकला है, तो इस करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर यह जरूर है कि जो भी एहतियात इस्तेमाल करनी है वो आपको वैसे ही करनी है जैसे और अन्य जगहों में करनी है। तो मंडी में भी आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे फ्रीक्वेंटली। Dr. Sareen, I want to ask you one more question here, which is that aerosols. What would you like to share with our viewers at this point? Is is the virus can the virus spread through aerosols, or is that a myth that's not possible? No, it can spread through aerosols. You see, first you have to understand what exactly is an aerosol. And aerosol is something which is generated as very small droplet nuclei. You see, it is either a consequence of the coughing itself, because there may be, an aerosol generation, or there can be some procedures like patients are advised nebulization or steam inhalation or something like this. That can also lead to aerosolization. And this virus can spread through aerosolization. Okay. That should be very clear. Okay. So anyone who is taking care, especially the health providers who are taking care of patients who need aerosolization, and there is a probability that that individual, as I said, you see, corona could be anywhere. Corona could be with any patient. So you have to presume that and take the precautions. So whenever anyone is aerosolizing anyone, then that individual, the health provider, has to wear a protective equipment, which is at least a mask should be there. Okay. ये बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं, जो भ्रम भी हैं उन्हें भी दूर करना ज़रूरी है, और जो सावधानियां हैं। मीनाक्षी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं। She is joining us from Perth in Australia. Yes, Miss Meenakshi, good afternoon. Please ask your question. Good afternoon. My question is for Dr. Ashutosh Vishwas. My question is, the schools are opening here next week, so is it a good idea to send the children to school, and what precautions should we take in case we have to send the children to school? Sure. Okay. Yes, Professor Biswas. Yeah, Meenakshi, she is sending the student to school now in Perth in Australia. This is quite safe. I think there are about, I think there are 600 cases are detected in the Western Australia. So in that situation, I think it is safe, but you have to follow the government rule, what your country, Western Australia government, that's saying about the school, whether it is open, or if it is open and the children they want to go, I think they can go. But you have to remember that all these etiquettes, social distance, maintenance of social distancing, and then using the mask, and then probably hand washing, these are all, I think, in place. So you have to be little bit know about this, how much really happening, what is the impact of the disease over there. So I think it is safe in Australia, Western Australia, but they must at this moment. continue to monitor the situation very closely and keep following the government orders there. That's very important. At this point, I would also like to talk a bit about plasma therapy, and we're also in fact getting questions on our Facebook page as far as that is concerned. Would you say, Dr. Sareen, that plasma therapy has shown encouraging results? Is that going to be one of the treatments that may be possible in the near future? And the person here is asking, is plasma therapy more successful technique to overcome a pandemic, and up to what percentage level the infected people can be cured by this technique? Okay, I think first of all, one has to understand what exactly is this plasma therapy. You see, the individual who has got cured of COVID has developed some antibodies through his immune mechanism against this particular virus. And it is these antibodies which are then pumped into someone for therapy. So this is what is called plasma therapy. What we do is that we remove blood from an individual who's got cured from COVID, separate the plasma, which is one of the components of the blood, and then plasma as we give blood to an individual who is suffering from COVID, and especially serious forms of COVID. You see, these type of therapies, whatever they are not for mild cases, they are not for moderate, they are actually speaking for very severe form of COVID. That is something to understand. And they are still in trial mode. Today, I cannot say that yes, this is the answer. No. But yes, some individuals have responded. They have done very well. So
that's encouraging for us. What proportion will really respond to this? We It's still very don't difficult know. to say Okay. right now. But at this time, Dr. Serene and Professor Biswas, would you like to urge our viewers that, those who have been cured of COVID-19 must come forward and be the donor to those who are being treated across the country as a way of, paying back to their own treatment, as a way of paying back to the country? Yeah, this Yes, is a very Professor important area now we're exploring, and this has been tried in Ebola also. We did not have any medicine in African countries, Ebola, which is about 80% mortality. Here we have a 3 to 5% mortality. So we have that knowledge from those that if any virus attacking human being. So after attacking, we develop antibody, that is either IgM or IgG. That is what we are talking about. All the patients develop antibodies? Yes, it is not. 80%, as we said, are asymptomatic or silent COVID. So in those cases, probably they don't develop antibodies, or there may be antibodies, the titer may be very low. So that's the reason probably they are not having symptoms, and because the virus are not creating any systemic manifestation or systemic diseases, the virus has not gone into the blood, and that's why the antibodies are probably not developed to a substance. So we cannot take, probably it will not be ideal people, those who are positive, mild to simple, asymptomatic cases, they are not the proper donor, but we have to check whether the antibody level is okay or not. But still we have to know this antibody, when we give this antibody really attack the virus. So when there is a virus, antigen inside, in severe cases, this antibody goes and neutralizes the viruses. Now that is how it is causing, it is not attacking any other things. So it is the virus. So at that point, we need to understand whether the viremia, which we call, is a very high, which are marker for the severity of the disease. So when the patient is very severe, we think probably virus the level will be very high, and if we give this antibody, they are going into the blood to knock down the viruses, and it will gradually decrease the multiplication, patient likely to improve. So this is, there are many things to understand. अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका अभी जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है और उन पर काम चल रहा है, लेकिन इस बीच हमारी एक कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़ गई हैं, शिल्पा जुड़ गई हैं। शिल्पा, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे पूछना था, 36 year old and I have removed my tonsils in 2008. So is this a high risk to get infected easily? And my 4-year-old boy has bal dama like, and he's on the puff, bureaucratic puff. So did the warm water and gargle is the best solution to avoid the risk for that? All right, Ms. Shilpa, if we can understand that better, you are saying that there is some pain in the throat. No, actually मैंने मेरा tonsils remove किया है 2008 में. Okay, you had tonsillitis. Okay. Yeah, so it's a high risk for me to get infected easily. Sure. और मेरा 4 साल का बेबी है, तो उसको अभी पफ है, bureaucratic पफ भी चालू है, तो मैं उसको रोज गर्म पानी देती हूँ और gargles daily. We are using gargles daily. Okay. So what precaution should we take? Sure. Okay. Yeah, Professor Biswas. Okay, so now it is we are thinking about this slightly more than our hand washing, repeated hand washing, mask using, social distancing to prevent corona from infection. Now we are going for a little bit, we have understood that throat hygiene is a very important issue because this virus, जो भी virus है, कोरोना वायरस, हमें ये गला में हमला करता है. सो इसमें गले में जो पहले अभी बताया कि 3-4 दिन तक इसमें मल्टीप्लिकेशन होते हैं और यहाँ पे बढ़ते रहते हैं वायरस. तो अगर हम गले में अभी जैसे हम हैंड वॉशिंग करते हैं सोप से, वी वॉश आउट द वायरस फ्रॉम आवर हैंड, बट गले को कैसे हम साबुन से वॉश नहीं कर सकते. अगर गले में वायरस है तो इसको हम कैसे मिनिमाइज करें और कैसे प्रिवेंट करें इसको कि लंग्स में ना जाए और धीरे धीरे ना बढ़े. तो गार्गलिंग, नमक पानी से गार्गलिंग, इट इज ऑल्सो एन effect of antiviral. So you can also do regularly. और इसके साथ साथ जैसे हम होटल में जाते हैं, कभी कभी साबुन नहीं है तो नींबू पानी से हम हाथ धोते हैं होटल खाना खाने के बाद, क्योंकि दिस दो है ना, दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी, नींबू पानी, तो दिस इज ऑल्सो अ very important work like a soap. So it is also an antiviral, ascorbic acid. So if you also
take the lemon water, so that also decreases the viral effect. So this also kills some virus. And also there are other, जैसे gargle करते हैं हम, जैसे लिस्टरीन और बिटाडीन, ये भी बहुत ही strong antiviral है. It has been seen that जैसे H1N1 उस time से भी well tested है. If you also do the gargling with those kind of, so it can also kill the viruses and minimize the and reduce the viral load, and it prevents the severity and the symptoms. बिल्कुल, ये कुछ एहतियात हैं जिन्हें अपनाकर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जरूर हम बच सकते हैं। खासकर इस वक्त पर अपने गले का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठा था, भी एक महिला ने बात की थी बच्चों की इम्यूनिटी की, कि इस वक्त बच्चों को बाहर भेजा न जाए। इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर रोहित बहुत सारे सवाल इस वक्त किए जा रहे हैं। कुछ लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज भी सामने आई हैं। कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, अलग अलग विचार हैं इसके ऊपर कि क्या किसी विशेष प्रकार के पदार्थ ऐसे हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, या कुछ ऐसी टॉनिक्स हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। मेरा सोच ये है कि अगर हम पौष्टिक आधार लेते हैं तो हमारा सिस्टम इटसेल्फ इतना ट्यून्ड है कि वो इस पौष्टिक आधार को हमारे इम्यूनिटी में बना देता है। तो अ बैलेंस्ड डाइट, अ गुड बैलेंस्ड डाइट इज सफिशिएंट. यू डोंट नीड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स एज सच. दो तीन चीजें का ध्यान रखना चाहिए. एक तो द डाइट शुड बी गुड, एंड सेकंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक्सरसाइज है, व्यायाम है. ये भी इंसान को रखता है और ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा. द मोर यू एक्सरसाइज, the stronger you are in terms of your immune system and even otherwise. So I will say that people should have a good diet, a balanced diet. It's not a costly diet. It is not necessary कि भी ऐसी चीज लेनी है जो 100 रुपए किलो है. आप ऐसी चीज भी ले सकते हो जो 15 रुपए किलो है, 10 रुपए किलो है, और उससे भी अपनी इम्यूनिटी बना सकते जी. जो डॉक्टर रोहित बहुत आसान तरीके आपने यहाँ पर बताया है इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव करने के. इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ भोपाल से, विश्वनाथ. बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए. नमस्कार. सवाल ये है कि कोविड की फाइट में क्या हम अल्कलाइन वाटर जिसका पीएच 8.0 लगा है, उसको पीने से क्या हमको रिलीफ मिलेगा कि कोविड के फाइट में? Sure. You're asking about alkaline water, Mr. Iyer? Mr. Iyer, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, we'll try and get back to him as soon as we can. But going forward from here, let's go back to Dr. Jain, who is standing by from Indore. Dr. Jain, very important that comes in here. Of course, we're still trying to understand the nature of this virus. But what would you say? What makes COVID-19 so contagious? तो देखिए, मैं सबसे पहले जो हमारे भोपाल के कॉलर है उनका जवाब दे दूं. वो ये पूछ रहे थे आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिससे कि वाटर के पीएच को बढ़ाया जा सकता है. अल्कलाइन वाटर जिसमें कि 8.5 पीएच का वाटर होता है, जबकि हमारा जो ये सप्लाई वाटर है करीब 7 पीएच का होता है. एंड एज सच उनके लिए ये कि अल्कलाइन वाटर से कोई कोविड का प्रोटेक्शन होने वाला नहीं. तो पहली तो ये है. और दूसरा ये है कि अब कोविड इतना कंटेजियस क्यों है. तो इसका अगर हम नाम देखेंगे ना, तो इसका नाम कोरोना इसीलिए है क्योंकि इस वायरस के आसपास एक फैट की लेयर होती है जिसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, और इसीलिए इसको नाम कोरोना दिया गया है. तो जब ये वायरस हमारे अंदर पहुंचता है तो ये एक रिसेप्टर से बाइंड होता है, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद जब सेल के अंदर एंट्री करता है तो इसकी लाखों कॉपियां बन जाती है एक साथ. और इस तरह से एक तरह से व्यक्ति में डिसीज हो रही है, और अब इतनी सारी आरएनएस की कॉपियां बनी है कि अब ये वायरस जैसे ही व्यक्ति ये छींकेगा या खांसेगा या इवन जोर से बोलेगा, तो अब उसकी श्वास के अंदर भी ये वायरस तैर रहा है, और ये वायरस अब दूसरे को पहुंचेगा. अब चूंकि इस वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा है और इस वायरस का सर्वाइवल इसके पहले के जितने कोरोना वायरस रहे हैं उसकी तुलना एडवर्स कंडीशन में भी ये वायरस ज्यादा लंबे तक सर्वाइव कर रहा है, और इसीलिए ये कंटेजियस है.
और इसीलिए ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है चेन ट्रेस करने की, एक एक और पता करके उनको क्वारंटाइन और आइसोलेट करने की, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस वक्त। सेल्फ आइसोलेशन, अगर आप में जरा से भी लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जैन इंदौर से। और वक्त कम बचा है नैन्सी हमारे पास, तो हमारे जो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है, आपसे भी जानना चाहेंगे डॉक्टर सरीन की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जरूरी है उनको फॉलो करना आपकी तरफ से। देखिए, आई थिंक एक चीज हम सबको जो समझनी है, अगर मेरे को कोई कहे कि आज के दिन का मैसेज क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि कोरोना रहेगा और हम भी रहेंगे, तो हमको इसके साथ मिलके रहना है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना, so we have to practice all those things which we have discussed here to protect ourselves and let it be as a normal living. Our lifestyle should be such that we are living with corona. Sure. Lockdowns will not be the final answer. One cannot say that, okay, lockdowns happen for a certain time to help us to prepare. But we cannot have them for years. Sure. Lockdowns will absolutely. Professor Biswas, we're just running short of time. Very quick, brief closing comments from you as well. Yeah, this no corona. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश जारी किए। हल्के लक्षण और पुनर्लक्षण की अवस्था में होम आइसोलेशन का विकल्प दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने